Hello, Divine Souls. Jyotsna Rao from the arms of Divine Mother Earth. I'm sure we all are doing awesome and we are blessed in abundance in all area of our life. Well, I'm here today with another affirmation where I'll be guiding you all and sharing you all the way I request our Divine Mother Earth to keep us grounded and rooted. So I thought, let me just share this knowledge with you all also, so that you all can do it in your every day-to-day life, And yes, of course, with this, I'll be showing you all a couple of crystal stones, natural stones, which you all can use this for grounding. This could be an additional grounding stuff that you can keep it with you all. Either you wear it, you keep it in your bag, in your pocket, wherever you are comfortable with, comfortable keeping it. Yes. So let's get started. Now, before that, let me just tell you that why we need to be grounded and rooted. Okay, each and every human being who's there in the arms of Divine Mother Earth, we should always and always learn to be grounded. When I say grounded, this is not something that where I'm saying ki you're too egoistic or lot of attitude, lot of proud in you. It's not about that. Keeping ourselves grounded every day, every moment, in fact, is going to be we'll be blessed with more and more positive energy. When we keep ourselves grounded with Divine Mother Earth, however um, however rich we may be, or however intelligent we may be, however thankful or grateful we are to what we have in our life, to whatever level you grow in your life, whether it is your career, your personal life, your family life, your love life area, however blessed you may be. But on a human level, we tend to somewhere or at some moment of our life, as a human nature, we all tend to uproot ourselves, especially when we see ourselves growing in a good way. When I say growing, it could be financially, it could be career wise, it could be having a good family, having a good life, having a good partner. So what happens is we feel very proud about it. The moment we feel proud, that's when our ego starts playing in between. You may not intend, आपको ऐसी आपके माइंड में या आपके मन में ऐसी कोई चाह नहीं होगी कि आप अपने आप को इतना रूड दिखा दो या ईगोइस्टिक दिखा दो. ईगो को हिंदी में क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट ईगो आई थिंक सबको पता है आज की दुनिया में ईगो क्या होता है. तो आप चाहते नहीं होंगे कि आप अपने आप को ईगोइस्टिक दिखाएं या अपने आप को इतना प्राउडली शो करें या ऐसे एटीट्यूड करें. बट आ जाता है टाइम टू टाइम, जब हमारे लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होने लगती है, उस वक्त आप धरती को, ओके, जहाँ से हमको एक्चुअल मेन सोर्स मिलता है सबके लिए, वो सोर्स को ही हम भूलने लग जाते हैं. या जो चैनल से हम इतना ग्रो कर चुके हैं, जिन्होंने जिन्होंने हमें इस लेवल पे आने के लिए ग्रो किया है, उन सब को हम भूलने चले जाते हैं. इतना ज़्यादा हम उस चीज़ में घुस जाते हैं या इनग्रॉस हो जाते हैं जो चीज़ आपके साथ उस वक्त है. बहुत अच्छी बात है, आपको उस चीज़ में इतना ज़्यादा इनग्रॉस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप और भी ग्रो कर पाए. लेकिन उसके साथ साथ हमें उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड रखना और माँ के साथ, धरती माँ के साथ ग्राउंडेड रहना, रूटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितना हम ग्रो कर रहे हैं बस ग्रो करते रहे. कोई ऐसा मोड ना आए लाइफ में जहाँ ग्रो करते 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 बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स आप गिर ना जाए वहाँ से, है ना. तो इसीलिए ये ग्राउंडिंग हर एक इंसान को करना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली अगर हम देखें आज के युग में, जो ये अभी का युग है, यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, एक जनरेशन था जब हम कह सकते थे कि हमारे एक जनरेशन पीछे चले जाते हैं, या हमारी ही जनरेशन ले लीजिए, जब हम पैदा हुए थे तब से लेके अब तक हमारे लाइफ में ऐसा था कि पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फॉर पेरेंट्स हैं, फॉर फादर्स हैं,
इन सबों ने अपनी ना पूरी कोशिश कर करके, मैं नेगेटिव वर्ड्स यहाँ नहीं डालना चाहती हूँ, बट स्टिल मैं एक वर्ड यहाँ पुट अप कर दूंगी जिसको मैं बाद में कट बोल दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट एनी नेगेटिव वर्ड्स इन माय वीडियो और एनी काइंड ऑफ माई स्पेल्स ऑल्सो, विच एवर स्पेल्स आई गिव। एक चीज होता है जिसको कहते हैं आप संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कट, ये सारे हमने देखे हैं कि अभी हमारे जनरेशन तक हमने ये चीज किया है। अब इसके आगे जो जनरेशन्स आए हैं हमारे बाद के, इन जनरेशन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे सब कुछ बहुत प्यार से हमने प्लेटर में सर्व किया है, थाली में परोस के दिया है, हर चीज़, वेदर उनका रहना है, खाना है, पीना है, स्कूलिंग है, जो भी है, सब कुछ हमने उनको प्लेटर में सर्व किया है। तो इस जनरेशन को ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ को हमें कितना वैल्यू करना है, कितना रिस्पेक्ट करना है। अब जब ये मैं कहती हूँ ना, तो इट्स नॉट दैट कौन सी चीज़ को कितना करना है, इन्हें हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ जो उनके लाइफ में उनके सामने आता है, सिचुएशन है, चीज़ें हैं, लोग हैं, जो भी है, सबको वो वैल्यू और रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, जो अभी के जनरेशन बिल्कुल याद नहीं रखते। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे याद नहीं रखते, बहुत कम है जहाँ मैंने देखा है कि जनरेशन में है अभी भी वैसे जनरेशन जहाँ पे उनको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू पता है, लेकिन सबको आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इनके जो आगे आने वाले जनरेशन है, अभी हम ऐसी दुनिया में हैं जिसको कलयुग कहते हैं, इसके आगे हमारी दुनिया और अच्छी होते जाने वाली है। तो हमें क्या करना है, हमारे सारे जनरेशन को बहुत अच्छे से सीख देना है, ताकि जब अच्छा युग आने लगे उसमें हम सारे अच्छे जनरेशन वालों को ही यहाँ पे फीड करें। एक चीज़ बहुत जो इम्पोर्टेंट है, अगर हमने ये सीख हमारे जनरेशन को दी है, जब हम डिपार्ट हो जाएंगे, जब हमारा सोल, हमारा आत्मा जब इस शरीर से डिपार्ट हो जाएगा, डेफिनेटली जो हमारे कर्म्स हैं उसके कारण हमें दोबारा से जन्म लेना है इसी धरती पे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम हमारे ही जनरेशन के उनके जनरेशन बन के पैदा होंगे। तो क्या होगा, जब हम ये सीख दे के चले जाएंगे, तो वो जनरेशन जब हम दोबारा इस धरती पे पैदा होंगे, तब हमें यही सीख से ये लोग हमें हमारी परवरिश करेंगे। तो उसी कारण से क्या हो जाता है, जो युग अच्छा बनने वाला है उसमें हम पैदा होंगे, उस चीज़ को हम और भी अच्छे से इस धरती को चला पाएंगे, जहाँ पे लालच, डिसऑनेस्टी, अनवर्दी पीपल, जिसमें ट्रस्टवर्दी पीपल नहीं है, जेलसी हो, जो भी ये सारे नेगेटिव चीज़ें कलयुग में चलते आ रहे हैं, उस चीज़ को हम काटते जाएंगे और एक ब्यूटिफुल सतयुग जैसा युग दोबारा आने वाला है। ट्रस्ट मी, आ रहा है और आएगा ही। तो इसलिए हम क्यों ना अभी से प्रिपेयर कर लें, हमारे जनरेशन को छोटे छोटे टिप्स देके, जहाँ पे हम अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल और बहुत प्योर बना सके, है ना, बहुत प्यार से इसको हम सजा सके, संवार सके, खिला सके। ओके, सो दैट्स वाई दिस एफर्मेशन दैट आई हैव कम अप विद, ये हम अपने ग्राउंडिंग के लिए कर सकते हैं। इससे ग्राउंडिंग का जो मैं एफर्मेशन आप लोगों को देने जा रही हूँ, उससे पहले एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है। फॉर पीपल हु आर इन साइकिक फील्ड, हम जैसे जो लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, साइकिक पाथ पे चलते हैं, कुछ भी करते हो, वो रीडिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, और भी कोई मोडालिटीज़ इसमें यूज़ करते हो, उनके लिए ये ग्राउंडिंग करना एवरी मोमेंट इन देयर लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सबसे बड़ा जो ईगो होता है ना इस धरती पे, वो स्पिरिचुअल ईगो है। स्पिरिचुअल ईगो, नाउ व्हेन आई से स्पिरिचुअल ईगो, ये कोई धर्म वाली बातें नहीं है। स्पिरिचुअल को हिंदी में कुछ कहते हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, बट स्पिरिचुअल ईगो है। ये स्पिरिचुअल ईगो को हमें बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड करना है।
तो all the healers out there, all the psychic people out there, all the people who are walking on a spiritual path, it could be just the journey that you'll have started, or it could be that you'll are there in this journey or on this path for ages now, but still, please learn this. If you already know, awesome, keep doing it. If you don't, if this video or my talks are going to digest you all, please take this help of grounding yourself and work on yourself to be grounded, क्योंकि spiritual ego से बड़ा कोई ego नहीं है. पैसे का ego कभी ना कभी कट हो ही जाता है. आप ग्रो करते हो, एक मोमेंट आता है या एक मोड आता है लाइफ में जहाँ पे ऊपर चढ़ने वाला इंसान फाइनेंशियली भी ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक थिंग है, ये अप डाउन होते जाता है. लेकिन जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, एक बार आप उसे प्राप्त करना स्टार्ट कर ले, अगर आप इसके प्रैक्टिस में हैं, ये आपसे कभी भी कोई भी लाइफ में कोई छीन नहीं सकता. तो इस ईगो को हमें बढ़ाना नहीं है. ठीक है. सो अभी आप कैसे करेंगे ये, क्या बोलेंगे अपने आप के लिए ग्राउंडेड रहने के लिए. मैं ग्राउंडिंग, कॉर्ड कटिंग एंड शील्डिंग, ये सबके क्लासेस लेती हूँ. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, जो भी इंटरेस्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ये ग्राउंडिंग प्रोसेस जो मैं सिखाती हूँ, कॉर्ड कटिंग जो मैं सिखाती हूँ, शील्डिंग जो मैं सिखाती हूँ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. प्रैक्टिस के साथ ये 5 मिनट के अंदर होने वाला प्रोसेस है, बट वो बहुत अलग तरीका का है. बहुत हैवी वे में मैं सिखा देती हूँ लोगों को, जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, टू स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस, एक सिंपल सा एफर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी. वो एफर्मेशन आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले प्लीज़ ये 2 बार अपने लाइफ में रिचुअल की तरह, रोज़ जैसे कोई है पूजा पाठ करता है, जो भी रिचुअल है, जैसे हम उठते हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू, ब्रश आर टीथ, है ना, हम ब्रश करने चले जाते हैं, या फर्स्ट थिंग ब्रश करने से भी पहले हम पी करने चले जाते हैं, हम सुसु करने चले जाते हैं. उसी तरह से ये रिचुअल अपने माइंड में रखें कि जैसे हम उठे, हम हमारे धरती माँ को ये बात बोलें, एंड जैसे ही हम सोने जाएं, दोबारा से ये धरती माँ को बोले, एंड देन गो टू स्लीप. ठीक है. तो बोलना क्या है ये पहले बताऊंगी, और फिर इसे करना कैसे है ये भी मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा मेडिटेटिव वे में, सो दैट ये आपके लिए और थोड़ा पावरफुल बन जाए. तो एफर्मेशन को बहुत गौर से सुन लीजिएगा, एंड देन यू स्टार्ट, प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा आपके माइंड में. आपके माइंड को ये सब्जेक्ट, ये मैसेज यूनिट्स जो मैं एफर्मेशन का दे रही हूँ, ये सब आप उसमें आपके माइंड में सीड करते जाइए, तो ये जल्दी से आपके लिए रजिस्टर हो जाएगा. ठीक है. सो हाउ आर यू गोइंग टू से दिस? No, sorry, what are you going to say? Divine Mother Earth, please keep me grounded and rooted now. Divine Mother Earth, I am grounded and rooted now. ठीक है. दोबारा रिपीट करती हूँ. या तो आप डिवाइन से स्टार्ट करें, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, हे डिवाइन मदर अर्थ. जब हम हे डिवाइन मदर अर्थ बोलने जाएंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल टच लग जाता है, जैसे कि हम उन्हीं में हैं और वो हम में हैं, हम उनको अलग नहीं समझ रहे. Of course we are in her arms, but still we'll feel कि ये हमारी ही है. तो जब हम हे डिवाइन बोलने जाते तो ये और भी अच्छा साउंड करता है, उनको एक पर्सनल टच दे देते हैं, जैसे अपनों का टच मिल गया वैसे लगता है. ठीक है. तो आप ये इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हे डिवाइन मदर अर्थ, आई एम ग्राउंडेड एंड रूटेड नाउ. सॉरी, ऐसे नहीं. हे डिवाइन मदर अर्थ, प्लीज कीप मी ग्राउंडेड एंड रूटेड नाउ. Hey Divine Mother Earth, I am grounded and rooted now. So it is now. Okay? जैसे ही so it is now हो जाता है आपका, it's done, it's done, it's done. जैसे मैं दूसरे वीडियो में भी बताती हूँ, जब कोई एफर्मेशन हम करते हैं, जैसे जितनी बार भी आप इसे अफर्म करेंगे, उसके बाद आपको एक बार it's done, it's done, it's done. क्यों कर रहे हैं? हम बोल रहे हो गया, हो गया, हो गया. दैट मीन्स हमने हमारा कमांड या हमारा रिक्वेस्ट वहाँ पे दे दिया है, और वो ऑलरेडी उन्होंने वो हमारा रिक्वेस्ट ले लिया है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है. ठीक है.
नाउ आप थोड़ा और इसको इफेक्टिव करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ओके मैं एक प्रोसीजर आपको यहाँ दिखाती हूँ, आप उस तरह से कीजिए। मेरे पहले वाले वीडियो में भी ऐसे दिखाया गया है, सिंपल सा वे है बेबी, आप लोग ट्राई करेंगे बहुत इजी होगा। इनिशियली मे बी जो नए हैं उनको करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करते रहेंगे आप, बार बार करते रहेंगे, ट्रस्ट मी आपसे ज़्यादा सिंपल वे और मिनिमम टाइम में कोई नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके सबको लगता है कि आई एम दी बेस्ट, वैसे आप भी बोलिए कि यू आर दी बेस्ट और आप ये कर पाएंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे आप, जहाँ पे भी है आप, अपने बेड पे हो, खड़े रह रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, हाउ एवर इट इज, आपको एक पर्टिकुलर वे में ही रहना है, पर्टिकुलर टाइम पे ही करना है, या पर्टिकुलर जगह पे रह के करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बार मैंने सुना है लोगों से कि लोग कहते हैं कि ग्राउंड होने के लिए आपको नंगे पैर चलना चाहिए या नंगे पैर ग्रास पे चलना चाहिए ताकि हम उसकी एनर्जी अपने अंदर ले लें। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये, सिर्फ हम एनर्जी के लिए करते हैं। जो आप नंगे पैर ग्रास पे चलते हैं, जो हरियाली होती है ना, जो ग्रीन एनर्जी है वो आप लेते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा है। यहाँ पे मैं ग्रोथ के लिए कोई एफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, ना ही ग्रोथ के लिए कोई स्पेल बता रही हूँ। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपको हमारे हमें हमारे धरती के साथ ग्राउंडेड कैसे रहना है और रूटेड कैसे रहना है, तो उसके लिए हम इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे। ओके रिलैक्स होके जहाँ पे भी आपने बैठना है, खड़े रहना है, लेटना है, वो आप कर लीजिए। अपने आप को रिलैक्स करिएगा, अपने माइंड को रिलैक्स कर दीजिएगा, पूरी बॉडी को अपना, अगर लगे कि थोड़ा स्टिफ है, अभी भी कहीं पे हमारा माइंड चल रहा हो, सब सुबह उठते हैं तो वैसा कुछ होता नहीं है क्लटर माइंड में। ये रात के वक्त होता है कि यार मैंने ये कर लिया, वहाँ लाइट बंद कर लिया, यहाँ का लाइट बंद कर लिया, किचन में किचन का प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर लिया, दरवाज़ा लॉक कर दिया कि नहीं, ये घर आ गए कि नहीं, वो घर आ गए कि नहीं, बच्चे सो गए कि नहीं, ये सब चीज़ें हमारा उस वक्त घूमते रहता है माइंड में। वो सबको क्लियर करके आपको बैठ जाना है, लेटना है, खड़े रहना है, जिस तरह से भी करना है। जैसे ही आप बैठ गए, 3 बार, 3 times you will do this breathing exercise. Breathing in through your nose, breathing out through your mouth. नाक से सांस लेना है, मुंह से नाक को मुंह से सांस को छोड़ना है, ठीक है। कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। आंखें खुले हैं हमारे, मैं आंखें बंद रख के 3 बार का डीप ब्रेथ दिखाऊंगी आपको, बट आप लोग यहाँ पे आंखें खुले रख के करेंगे। मैं जब ब्रीथ आउट करूंगी उस वक्त मेरा चेहरा साइड में होगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे सामने मेरे ब्यूटीफुल टीम खड़े हैं जो यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने सांस को उनके ऊपर ब्रीथ आउट करूँ, ठीक है। तो आप गौर कीजिए कि मैं ये कैसे कर रही हूँ प्रैक्टिस। इस तरह से आपको करना है, लेकिन आंखें खुले रख के, जो पहला 3 लेवल का आपका ब्रीदिंग है। ओके अगेन दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को ये। जैसे ही हो जाए आपने धीरे से अपनी आंखों को बंद कर देना है, अब जैसे मैं करने वाली हूँ, ठीक है। स्टार्ट ब्रीदिंग नॉर्मल। द मोमेंट आपका 3 बार का ब्रीद इन ब्रीद आउट हो चुका है, हैवी वाला, लंबा वाला, उसके बाद आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, जैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ मोमेंट टू मोमेंट ब्रीथ करते हैं, उस हिसाब से ही हम अपने आप का ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। एंड जैसे जैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे जैसे आपको लगता है आप कंफर्टेबल होते जा रहे हो अपने ब्रेथ के साथ, आप धीरे से वेरी स्लोली यू विल क्लोज योर आईज। जैसे आप देख रहे हैं मैं बहुत कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, मेरी पूरी बॉडी कंफर्टेबल हो चुका है और रिलैक्स हो चुका है। या रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिएगा। उसके बाद
जैसे ही आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, आप अपनी सांस लेते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में आप लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लोली आपका फोकस, जो सारा फोकस है आपके माइंड का, वो आपके इस थर्ड आई पे ले आना है। यहाँ जो हमारा थर्ड आई होता है, यहाँ पे ले आइएगा। फोकस करते वक्त ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर नहीं देना है। नहीं आ रहा फोकस, इट्स फाइन, बट जो फोकस ला सकते हैं, प्लीज़ थर्ड आई पे फोकस ले आइए। जैसे ही आप थर्ड आई पे फोकस लाते हैं, आपको यहाँ पे मदर अर्थ, हमारी जो माँ धरती है, इनको विजुलाइज करना है। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए या उनको फील कीजिए। छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, बहुत बड़ा कीजिए, टाइनी टेनिस बॉल जैसा दिखे, जो भी है, आप यहाँ पे उनको बहुत क्लियरली देखेंगे कि आपके सामने मदर अर्थ है, माँ धरती आपके सामने है, और आप उन्हीं के ऊपर खड़े हैं या उनके आर्म्स में बैठे हैं या लेटे हैं, ठीक है, उनके बाहों में। जैसे ही आपको ये दिखने लगे कि यस, मैं अब धरती माँ के सामने, मेरे सामने धरती माँ है और मैं उनके ऊपर खड़ी हूँ, बैठी हूँ, लेटी हूँ, वट, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही प्यार से, जैसे हम नहीं अपने हमारे मम्मा से बहुत प्यार से बात करते हैं, जब कुछ चाहिए होता है तो बहुत बटरिंग करते हैं, उसी तरह से आप बहुत प्यार से मदर अर्थ, माँ धरती को ये रिक्वेस्ट करेंगे 3 बार। Hey Divine Mother Earth, please keep me grounded and rooted now. Hey Divine Mother Earth, I am grounded and rooted now. Hey Divine Mother Earth, please keep me grounded and rooted now. Hey Divine Mother Earth, I am grounded and rooted now. Hey Divine Mother Earth, please keep me grounded and rooted now. Hey Divine Mother Earth, I am grounded and rooted now. So it is now. It's done, it's done, it's done. जैसे ही आप इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन कहते हैं, हम अपना ग्रैटिट्यूड मदर अर्थ को मिनिमम 3 बार या 7 बार देंगे। मैक्सिमम जितना भी आप दे सकते हैं आप कर सकते हैं। यस, ग्रैटिट्यूड क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को ग्रैटिट्यूड बताते जाती हूँ, उस टाइप से कीजिए, या वेरी सिंपल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने 7 बार कहा है। अब मैं एक्चुअल ग्रैटिट्यूड जो मैं बताती हूँ वो 3 बार कहूँगी यहाँ पे। थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। जैसे ही हो जाता है ये, धीरे से, जैसे ही आपको कंफर्टेबल लगे, जिस तरीके से भी कंफर्टेबल लगे, बहुत स्लोली आपको अपनी आंखें खोल देनी है। लेकिन जब आप आंखें खोलते हैं, ये जो हमने हाथ ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, जैसे भी रखा है, आप पहले वो हाथ को खोलेंगे। जैसे ही आंखें खोलते हैं, सीधी नज़र उस हाथ के ऊपर जो आपका पाम है, उस पे नज़र आपको डालना है, और वो पूरी एनर्जी आपको अपने चेहरे पे ले लेना है इस तरह से, या और दोबारा ऊपर तक चले जाइए, यहाँ पे हमारा क्राउन चक्र की यहाँ पे, एंड देन हम ऐसे जाके नीचे लेके फिर आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे है, एंड आई एम श्योर कि एवरीबडी विल बी कंफर्टेबल डूइंग दिस, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल टेक्निक where you can make yourself not make yourself, where you all can keep yourself grounded by requesting our Divine Mother Earth. And beautifully she'll be holding us very tight in her arms, where she will not allow us to uproot ourselves. Yes, so viewers out there, ज़रूर ट्राई कीजिए ये, और देखिए आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। यस, जैसे 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 आप धरती माँ को अपने रूटीन में लाना स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, वो धरती माँ आपकी तरफ उतनी ही चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें जो चाहिए देते जाएंगे। कहाँ से, कैसे, कब,
कुछ नहीं सोचना है, बस अपना ड्यूज कर लीजिएगा, है ना। जैसे लॉर्ड शिवा ने, अगर हम लॉर्ड शिवा का पुराणाज में देखें तो उन्होंने कहा है कर्म करो कर्ता ना बनो। इसीलिए सिर्फ हम अपना कर्म करेंगे और कर्ता बनने की कोशिश ना करें। कर्म कीजिए और उसका फल लीजिए, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ थी कि ये एक एफर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि आप एफर्मेशन देके अपने आप को ग्राउंड कैसे कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें एडिशनल ऐड ऑन करना हो तो अपने लिए एक क्रिस्टल स्टोन आता है जिसको हम पाइराइट कहते हैं। आजकल पाइराइट के बारे में बहुत शोर शराबा हो रहा है, जहाँ पे लोग पाइराइट को बहुत प्रिफर करने लगे हैं। एक कारण से, क्योंकि पाइराइट इज़ अ मनी स्टोन। पाइराइट हमें पैसे सेविंग्स में मल्टीप्लाई करता है। जो हमें लगे कि हमें और भी ज़्यादा पैसे मल्टीप्लाई करे, और ज़्यादा सेविंग आए, प्रॉस्पेरिटी वेल्थ बढ़ते जाए, तो पाइराइट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोन फॉर दैट। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि पाइराइट हमें ग्राउंडिंग में बहुत हेल्प करता है। यस, तो पाइराइट रखने वाले, पहनने वाले बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्राउंड फील कराते हैं। ओनली फील नहीं कराते, रहते भी ग्राउंडेड है वो, ठीक है। तो आई हैव दीज कपल ऑफ पाइराइट्स विच आई थॉट आई शो इट टू यू ऑल। मैं आप लोगों को ये, मेरे पास कपल ऑफ पाइराइट्स यहाँ पे है जो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, ताकि अगर आप लोग चाहे तो ये खरीद सकते हैं एंड अपने साथ ये रख सकते हैं। किस किस तरीके का कैसे कैसे आप इसे रख सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा पाइराइट होता है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये दिस इज पेरू पाइराइट, इसे हम पेरू पाइराइट कहते हैं, इसीलिए इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया दिखेगी आपको, बहुत प्यारा सा क्वालिटी है। अब मैं ये आगे ला नहीं रही हूँ जूम कराने, क्योंकि हमने वो जूम इन जूम आउट वाला टेक्निक आज टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसे रखा है। आप लोग क्या कर सकते हैं, बीच में वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और उसे जूम करके देख लीजिएगा अगर क्वालिटी वाइज आपको देखना है तो ये वो पाइराइट है और रॉ पाइराइट है। बट इतना बड़ा पाइराइट जनरली लोग अपने बैग में कैरी नहीं करेंगे। ये बड़ा पाइराइट मैं इसलिए रखती हूँ कि लोगों को जिनको लॉकर में रखना हो, अपनी प्रॉस्पेरिटी वेल्थ पैसे को बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, उनके लिए मैंने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं जो अपने लॉकर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट आपको हमें जो ग्राउंडिंग के लिए चाहिए होगा वो हम ऐसे छोटे छोटे पाइराइट्स जो आते हैं ना, ये भी पेरू पाइराइट है, ऐसे छोटे छोटे वाले पाइराइट्स जो हैं इनको हम अपने बैग में, जो भी बैग हम कैरी करते हैं, फीमेल्स जो अपना हैंड बैग कैरी करते हैं, उसमें हम ये इजीली, छोटू सा है, बहुत प्यारा सा छोटू सा पाउच में इसे रख के आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए। ओके, अब ये दोनों चीज़ काम करेगा। आपने इसमें ग्राउंडिंग का भी इंटेंशन डाल सकते हैं, या आप उसके साथ साथ आप मनी फ्लो का, मनी सेविंग का, मल्टीप्लाइंग या मनी का भी इंटेंशन या मैनिफेस्टेशन डाल सकते हैं इसमें। एक ये तरीके से आप रख सकते हो, या जैसे मैंने यहाँ पे पेंडेंट शेप्स में भी कट किया हुआ है। अगेन ये रॉ पाइराइट है, पॉलिश्ड नहीं है, देखिए आप पूरा रॉ दिखता है ये, लेकिन इसे हमने कट उस टाइप में दिया है, पेंडेंट टाइप में। या तो आप इसे अपना पेंडेंट बना के पहन सकते हैं, या आप इसे अपना रिंग बना के पहन सकते हैं। जो भी रिंग पहनना जिनको पसंद है, बड़े बड़े रिंग्स पहनना पसंद है, वो बड़े बड़े पीसेस यूज़ कर सकते हैं। छोटे वालों में मेरे पास छोटे साइज़ के भी हैं, छोटे वाले पहन सकते हैं। इससे भी छोटा साइज़ अगर किसी को पहनना है तो ये इतना छोटा साइज़ है। अब जो रिंग्स पहनेंगे ना, स्पेशली जो हमारे हीलर्स हैं, जो ये देख रहे हैं, जो हीलर्स आउट देयर हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वुड सजेस्ट एंड एडवाइज देम टू हैव दिस पाइराइट रिंग इन देयर मिडिल फिंगर। ये जो हमारा सैटर्न का फिंगर होता है, शनि का फिंगर होता है, इसमें पाइराइट आप अगर पहने ग्राउंडिंग के लिए, ये बहुत 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 फ्रूटफुल होगा। तो जो भी हीलर्स हैं ये ध्यान रखें, अगर आप लोगों को पाइराइट पहनना है फॉर ग्राउंडिंग, ये आप मिडिल फिंगर, जिसको हम सैटर्न का फिंगर कहते हैं, इस फिंगर पे आप पाइराइट को पहन सकते हैं। फिंगर्स पे नहीं पहनना, पेंडेंट नहीं पहनना गले में, तो सिंपल सा वे है कि आप अपने लिए ऐसे ब्रेसलेट्स बना लें, है ना। ये जैसे ब्रेसलेट्स हैं, ये 10 mm वाला ब्रेसलेट है, ये 8 mm वाला ब्रेसलेट है, ये 10 mm वाला ब्रेसलेट है। आप ऐसे ब्रेसलेट, जैसे हमने ब्रेसलेट पहना हुआ है, ब्रेसलेट की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं। वो भी आपको नहीं पसंद आता
तो आजकल ऐसे पायराइट के छोटे छोटे ट्रीज मिलने लगे हैं, यू नो, रॉ पायराइट को जैसे ट्री में बनाया हुआ है, अगर आप देख पाते हैं तो आप ये अपने घर पे अपने बेड के पास, अपने रूम में अपने बेड के पास इसे रख सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे बेड के पास इसे कहाँ रखना है? वहाँ पे रखिए जहाँ पे आपका पैर आप रख के सोते हैं, सर की तरफ इसे नहीं रखना है। अगर आपने इसे ग्राउंडिंग के लिए किसी से एनर्जाइज करके लिया है या खुद हीलर है तो खुद एनर्जाइज कर रहे हैं, तो अपने पैर के पास इसे रख के आप ग्राउंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टोन है जिसे हम टाइगर्स आई बोलते हैं। नाउ टाइगर्स आई जनरली ये लोग ग्राउंडिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बट मैंने अपने काफ़ी सीकर्स के लिए, अपने काफ़ी हीलिंग्स में ये चीज़ें टाइगर आई को भी शामिल किया है, हाँ, इंक्लूड किया है, जहाँ पे ग्राउंडिंग का कंसर्न होता है। ना मैंने टाइगर आई इसलिए यूज़ किया है, यू नो, टाइगर आई स्टोन का जो कलर होता है ये ब्राउन कलर होता है, ओके। अगर मैं आपको ये पेड़ है, यहाँ पे हमने ये टाइगर आई का पेड़ है ना, टाइगर आई क्रिस्टल्स का, स्टोन्स का मैंने ट्री बना हुआ है यहाँ पे। तो ये अगर देखें ये ब्राउन है, सो ये धरती के कलर को बहुत ज़्यादा मैच करता है। एंड टाइगर आई इटसेल्फ इज अ स्टोन जो बहुत पावरफुल स्टोन है। कुछ ठान ले, नाम ही ऐसा है कि ठान लिया तो बस चाहिए वो। अगर टाइगर किसी चीज़ का शिकार करने निकलते हैं तो बहुत कम टाइम ऐसे देखा गया होगा कि उन्होंने अपने शिकार को जो टारगेट बनाया है उसे उन्होंने शिकार नहीं किया हो। तो अगर वो ठान लेना तो वो करते ही हैं। इसीलिए अगर हमने टाइगर आई पे भी ये इंटेंशन डाल दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया है, एनर्जाइज कर दिया है कि हमें ग्राउंडिंग के लिए यूज़ करना है, तो ये टाइगर आई भी वहाँ पे आपको ग्राउंडिंग का काम कर सकता है। बहुत ब्यूटीफुल होगा अगर आप टाइगर आई एंड पायराइट के स्टोन को यू नो क्लब करके, कपल ऑफ बीड्स ऑफ टाइगर आई, कपल ऑफ बीड्स ऑफ पायराइट, इनको मिक्स करके अगर आपने ब्रेसलेट बना के पहन लिया, ये भी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली ग्राउंडिंग का काम करेगा। ठीक है, सो ये रहा ग्राउंडिंग का वीडियो जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अपने आप को ग्राउंड कैसे करना है, क्या एफर्मेशन बोलना है, सिंपल वे आपका ग्राउंडिंग का आप रोज़ कैसे अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, आती रहूँगी ऐसे ही वीडियोस के साथ जहाँ पे आपको बहुत सारे स्पेल्स, बहुत सारा एफर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज ऊर्जा लेवल पे देती रहूँगी। So keep watching my videos. Thank you so much for spending your precious time for watching this video. In deepest gratitude, Jyotsna Rao.